We will have the welcome address by Brother Syed Fahim, chapter head of Chennai. Over to you and introduction, welcome and introduction of AMP. Thank you, Dr. Nigah ma'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As all of you know, we have started this program from this week. So this is the first program we are going to conduct under the school development program. As I welcome you all, those who are attending, the teachers, students, EMPNs, and others who have been attending this, I welcome you all. As it has been our practice, just to introduce ourselves, those who don't know about AMP, Association of Muslim Professionals, an NGO works for the overall development of not just the Muslim community, but also the society at large. It has overall 100+ chapters across India, and in fact, overseas also we have our chapters. Its aim is to promote social welfare, community spirit, and knowledge in our society. Registered as welfare organization under the Societies Act, its aim is to form a robust society and work through for the progress and development of our great nation, India. AMP's primary focus is on education and professional empowerment for all. It was formed in 2007 and it is funded by charity and Zakat funds for all its programs. AMP has distributed rupees 117+ crores as financial assistance towards education, healthcare, and livelihood, positively impacting the lives of 20,000+ families, helped 30,000+ students get shortlisted for jobs, trained 17,300+ final year students with employability skills, and trained 6,000+ students for free skill training, and much more. AMP projects are national talent search, school development program, employment assistance cell, career counseling cell, career guidance seminars, AMP scholarship fund, AMP education awards, relief and welfare activity, and so many. With this, I end the introduction of AMP. And Nigah ma'am, you can take up from this. Thank you very much. Jazakallah Khair Sahab. This program is Brother Muhammad Azam Sahab is a great visionary and is a great motivator. He has been serving the Indian Air Force and he had taken retirement from there, voluntary retirement, and he is now focusing on education. He has a vision that by 2025 or so, like all the children should be in school and they should get quality education. And he is working for that very closely with the MFERD. And he has formulated a program called School Excellence Program. And I think more than 20 schools are part of this program, including my school. And time and again, he guides us and he gives us a structured program where all stakeholders are included, including the not only the management, the teachers, the parents, the students, but also the invisible forces of the school, like the ayahs, the drivers. Everybody is taken care of, and everybody is everyone's contribution is taken care of, and everybody is given an opportunity to grow and to contribute to the quality enhancement of the school. So he likes to call himself the chief learner of the school which he heads as a correspondent. He is the correspondent of Imam Shafi Memorial School, Higher Secondary School, Adhiramapatnam. I think it's time for us to hear from him. Over to you, Azam sir. Jazakumullah khairan kaseera.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Respected office bearers of AMP and dignified audience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, आज हम जो हैं पहले तो एक फिक्र ओढ़ेंगे जी, हमारी उम्मत का हाल क्या है और इसकी वजह क्या है, हम कैसे थे और हम आज क्या हैं और कल हम कहाँ पहुँचना है। ये एक तरतीब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र गुजारना चाहिए हमें। AMP जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हमें अवेलेबल हैं, जो हम सबको जोड़ते हैं, ठीक है। जो 21st सेंचुरी स्किल्स का एक मौजू है कोलैबोरेशन। अब जहाँ जो अच्छाइयाँ हैं ये अगर हम लोग सब बांट लें और उसको जो है रेप्लिकेट करें तो फ़ायदा जो है आम हो जाता है। अब जो है अगर कम्युनिटी को खोए हुए सतह पर पहुंचाना है, ये जो है पूरी कम्युनिटी का काम है। ये एक आध स्कूल अगर अच्छी चल जाए इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जी, इसको हम अच्छी तरह समझ लें। मैं जब एयरफोर्स के दौरान पंजाब में था तो किराने की दुकान पे जब जाते थे तो जैसे सामान की लिस्ट जब बोलते, वो थे किशोर जी। किशोर जी जो है अपनी लिस्ट जैसे मैं बोलता था वो सरासर उर्दू में लिखते हैं, फटाफट इतनी बड़ी लिस्ट बना दी। तो मैं बोला, किशोर जी आप और उर्दू ये कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं, आप हमारी तालीम तो मदरसे में हुई थी, हमारी तालीम मदरसे में हुई थी। तो आप सोचिए हमारी कम्युनिटी जो थी, वी वर द गिवर्स, ओके, हम लोग देने वाले थे, मगर आज जो है हम रिसीविंग एंड पे हो गए। इसको अगर ध्यान से सोचे भाई ये क्यों हुआ, तो इसका सॉल्यूशन जो है हम एक ही सब लोग एक बात पे जो है सहमत हो जाएंगे, एक एजुकेशन है। एजुकेशन और एजुकेशन भी जो है आज जो हम समझ के बैठे हैं, वो एजुकेशन जो है उसका एक टोटल रिवैम्प करना है। नॉट ओनली मुस्लिम मैनेज स्कूल्स, द एंटायर कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम को जो है रिवैम्प करना है, इसको रिवैम्प करना है। अब देखिए, आप लोग सब सुने होंगे पीसा बोल के एक रैंकिंग होता है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्कूल असेसमेंट बोल के एक होता है। इसमें 73 मुल्क 73 कंट्रीज जो है हिस्सा लिए और जो है उसमें हिंदुस्तान भी एक था। ये जो पीसा की रेटिंग में 73 मुल्क शिरकत किए और उसमें क्या कोई मुझे ये बता सकता है इंडिया का रैंकिंग कहाँ होगा? चैट बॉक्स में लिखें या अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैं थोड़ा देखूं हमारी समझ क्या है। कोई एक आध आंसर मुझे चाहिए। आउट ऑफ 73 इंडिया का रैंक क्या हो सकता है? एक और आंसर कोई दे दे। अब देखिए, सिलिकॉन वैली में सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट इंडियंस होते हैं, गूगल में जो है सुंदर पिचाई CEO, ये सब हम सब बहुत प्राउडली बोल लेते हैं। तो फिर भी इसके बावजूद भी आउट ऑफ 73 व्हाट कुड बी आवर रैंक? थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए, आपको ये ताजुब होगा, out of all these 73 countries, our ranking was 72. The 73rd country जो था वो किर्गिस्तान था, किर्गिस्तान। तो आप समझ सकते हैं हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसे है। तो इसका जो है और एक रिपोर्ट आप, ये मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए ASER, इसको जरूर पढ़ें। असर रिपोर्ट कहते हैं इसको, असर रिपोर्ट, ठीक है, सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये हर साल जो है एक प्राइवेट NGO करता है और इससे जो है हमारे मुल्क का एजुकेशन स्टैंडर्ड पीसा में जब हम पीसे गए और 72nd रैंक जब हमारी आई, तो फिर जा करके जो है असर में देखिए, आप देख सकते हैं क्या क्या कमियां हैं, इसको खोजती है ये, और इसकी एक रिपोर्ट हर साल निकलती है और इसका रिपोर्ट आप ज़रूर पढ़ें। इससे ये पता चलेगा अगर कोई
अगर कोई 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को 2nd स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक दे दिया जाए और कितने परसेंटेज पढ़ते हैं, कितने परसेंटेज 5th स्टैंडर्ड के बच्चे 2nd स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, ये आप जो है इसका एक स्टैटिस्टिक्स है, आप जरूर देख लें. इट विल नॉट बी मोर देन 50%. अच्छा, इसी तरह बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर बच्चों को दे दें तो फिर जाकर के देखो उसमें भी जो है मोर देन 50% बच्चे जो. तो इससे क्या पता चलता है? तो ये जैसे असर रिपोर्ट हमने देखा, तो हमारे स्कूल में जो रियलिस्टिक रिपोर्ट एक देखते हैं बोल के हमारे बच्चों को जो है एक हम 2nd स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक लेके हर क्लास में पहुंचे अप टू 6th स्टैंडर्ड तक. और इन बच्चों का जो है रीडिंग स्किल तमिल में, इंग्लिश में एक एक पैराग्राफ पढ़ा के हमने देखा और उसका हम जो बाकायदा ग्रेडिंग किया 1 to 5. द बेस्ट रीडर जो था 5 ग्रेड्स देते थे, जो नहीं पढ़ पाता उसको 1 देते थे. इस तरह से हम लोग ग्रेडिंग किया. तो टू द सरप्राइज नेशनल एवरेज मान लो 55 मार्क्स है, एग्जैक्टली मैं फिगर्स भूल रहा हूँ, 55 से उसके आसपास है. तो 55 के आसपास थे हमारे बच्चे. ठीक है, जैसे पता चला भाई बच्चा जो है 5th स्टैंडर्ड पढ़ता है और आपकी 2nd स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाता है, इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं फ्लॉ है, इसको सही करना जरूरी. तो फिर हम लोग क्या है रीड फॉर प्लेजर बोल के एक क्लास शुरू किए. हर दिन जो है सवेरे 10 मिनट्स रीड फॉर प्लेजर की क्लास होती थी और बच्चे जो है पढ़ते हैं. साइट वर्ड्स डाल दिया, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, क्योंकि अब जो है मेन सब्जेक्ट्स जितना भी आप पढ़ाओ, आप कुछ भी पढ़ा लो, जब तक बच्चे को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं हो पाती, वो पहली बात तो समझेगा ही नहीं और जो है वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, और उसको जो है लिखना तो दूर की बात, वो समझ लें और उसको जो है बेचारा जो है या उसको जो है लिखना पड़ता है एग्जामिनेशन में. तो फिर जा करके वो रिजल्ट्स आएंगे कैसे? तो हमें पता चला, देखो बेसिकली हमारे पास जो ऐसे गलतियां हैं जो हम लोग सब मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया विल सी दैट पोर्शंस कंप्लीट करने में, 100% मार्क्स लेने में, 100% रिजल्ट्स देने में हम लोग तवज्जो देते हैं, मगर कोई भी स्कूल जो है बच्चे को रियली लाइफ स्किल्स चाहिए क्या, इसके बारे में कोई नहीं सोचता. क्या इसको लिखना पढ़ना आता है, पढ़ रहा है, इसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसकी तो कोई चिंता नहीं. ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में अगर आप देखें तो ये जरूर आपको देखने को मिलेगा. तो इसको सही करना है. ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. अब देखिए, पहली बात तो हम आज, मुझे टॉपिक जो दिया गया है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट है. स्कूल क्वालिटी असेसमेंट, इसको जांच कैसे किया, क्वालिटी कैसी है एक स्कूल की. पहली बात तो क्वालिटी हमें क्या है ये पता चलना चाहिए. अब ये क्वालिटी क्या है, मैं चाहता हूँ अगर कोई डिफाइन करे क्वालिटी, चैट बॉक्स में एक आदमी एक आंसर कर दें चैट बॉक्स में, क्वालिटी माने आपको समझ के आता है, कोई एक आध. आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड, क्वालिटी माने क्या है आपको स्कूल जो है. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, आपने रिस्पॉन्स किया. और एक रिस्पॉन्स क्वालिटी. अब देखिए, सिर्फ टीचिंग पे मत जाइए, मैं आम तौर पे पूछ रहा हूँ. कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं. कोई होटल में जाते हैं, क्वालिटी फूड बोलते हैं. ठीक है ना, हर चीज में. तो एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन दीजिए. क्वालिटी माने कपड़ा खरीदते हैं, बोला क्वालिटी का आइटम लेना है, कोई चीज जो है क्वालिटी. तो क्वालिटी तो बोलते हैं, सेटिस्फाइड, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच. नाउ विल गो. क्वालिटी माने एक ऐसा टर्म है, इसको जो है डिफाइन करना मुश्किल है. क्योंकि देखिए, जो भूखा रहता है उसको अगर खाना दिया जाए तो कैसा भी हो उसको तो क्वालिटी लगता है. अच्छा, अगर कोई पेट भरा आदमी है, एकदम दावत खा के आया है, अगर उसको अगर आप जा करके कितना भी खाना दो, उसको जो है सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है. तो सिचुएशंस पे क्वालिटी की डेफिनेशन बदल जाती है. अब वही लजीज खाना जो है वो गरीब को दे दिया जाए, उसके लिए तो बहुत बड़ा क्वालिटी है. ठीक है ना, whereas the other person has a different perception, उसको तो दूसरा लग रहा है, वो तो उसका पेट भरा हुआ, उसको तो नहीं लग रहा. तो इसी तरह किसी के पास पैसे कम है, उसको कम कीमत की चीज जो है क्वालिटी लगती है. और कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, अगर उसको जो है बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी दे, उसको उसमें मजा नहीं आता. वो कपड़ा जो है कोई कितना भी कीमती हो, कोई तो जो है स्कूल फीस अगर 1 लाख रुपए है तो वो उसको अच्छी स्कूल समझता है, इसको क्वालिटी समझता है.
तो इस तरह से क्वालिटी का जो है डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, मगर जो क्वालिटी के गुरु जो होते हैं ये क्या कहते हैं इसको देखते हैं। अब देखिए फिलिप क्रॉसबाई ये क्या कहते हैं, क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर मैं ये कपड़ा खरीदता हूँ वो मेरी एग्जैक्ट फिटिंग मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर फिटिंग सही आ गया तो मैं बोलूंगा इट इज कन्फॉर्मिंग टू माई रिक्वायरमेंट, ये मेरी जरूरत को पूरा करता है, तो मुझे क्वालिटी है। तो क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट ये कहते हैं। डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग क्या कहते हैं, ये क्वालिटी गुरु हैं। क्वालिटी इज ए प्रेडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी एट लो कॉस्ट एंड सूटेड टू द मार्केट। ये क्या कहते हैं, जो भाई एक कंसिस्टेंसी रहे, कोई भी चीज खरीदें भाई ऐसा ही मिलेगा हर बार, जितनी बार आप खरीदो उतना ही अच्छा रहेगा। Yes, Irfana ma'am, you have raised your hands. Is there anything you want to say? Right. I'll get back to the question because the flow will be disturbed. I'll answer your question. Don't worry. You can ask me later. Okay. अब देखिए एक कंसिस्टेंसी हो। अब एक चीज जो है एक शॉप में खरीदा आपने बाटा का शू, अब जो दूसरे शहर में जाके खरीदा तो वही आपको यूनिफॉर्मिटी मिलती है, डिग्री ऑफ प्रेडिक्टेबल यूनिफॉर्मिटी और डिपेंडेबिलिटी, और कॉस्ट वही है और इट सूट्स टू द मार्केट, ऐसा है। तो इसको जो है इस तरह से क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं। अब जो है डॉक्टर जुरान ये क्या कहते हैं, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज और पर्पस। ठीक है, फिटनेस फॉर यूज फॉर पर्पस। अब जो है ये फिटनेस फॉर यूज जो है इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल परसेप्शन। एक आदमी का जो है जैसा उसकी सोच है उस तरह से जो है वो उसको फिट समझता है। ठीक है, जैसा मैं पहले कह रहा था, जिसके पास पैसे बहुत कम है उसको जो है एक मामूली खाना मिल जाए वो खुश हो जाता है, इट सॉल्व्स हिज पर्पस। ठीक है, अगर कोई अमीर आदमी है उसके पास बहुत सारा पैसा है फिर भी जो है उसको जो है कितना भी लजीज खाना दे दे या कितना भी उम्दा कपड़ा दे दे तो उसको जो है वो ही इज नॉट सेटिस्फाइड। तो एक चीज आप समझ लीजिए, क्वालिटी इज डिलीवरिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर। मान लो कस्टमर कोई चीज एक्सपेक्ट करता है उसको हम फुलफिल कर दें, वो क्वालिटी समझ, वो उसको उससे खुश हो जाता है, वो क्वालिटी समझते हैं। इतना समझ लें। ठीक है, अब देखिए क्वालिटी जो है ये हम तो ऐसे कह दिए, अब क्वालिटी एक उसको एक बर्ड आई व्यू में देखें, अगर ऊपर से देखें ये क्या चीज है, और इसके जो है 7 प्रिंसिपल्स, ये क्या प्रिंसिपल्स हैं ये देखेंगे, और इसको जो है हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है इसको फिट करके देख सकते हैं। वी कैन फिट इट, कहीं भी जो है ये फिट हो जाएगा। अब देखिए स्कूल के एनवायरनमेंट में ये फिट हो जाएगा, एक बिजनेस एनवायरनमेंट में फिट हो जाएगा, एक स्पोर्ट्स एकेडमी है वहाँ फिट हो जाएगा। तो हर जगह जो है ये प्रिंसिपल फिट हो जाते हैं। अब जैसे कोई भी कंपनी देखते हैं आप, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ISO 9001 कंपनी है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है। इस तरह से हम जो है बोर्ड्स देखते हैं। तो भाई ISO 9000 क्या है, ये कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या चीज चेक करती है, ये हमें पता नहीं। तो ये चीजें देखिए, जितने प्रिंसिपल्स मैं आप जो दिखा रहा हूँ आपके 7 प्रिंसिपल जो हैं ये जनरली क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं। तो इसमें पहला जो प्रिंसिपल है ये कस्टमर फोकस है। अब देखिए हम लोग जो है जब बचपन में स्कूल जाते थे, यूनिफॉर्म शूज जैसे बात उठती थी तो हमारे दिल में सबसे पहले बाटा याद आता था, बाटा शूज लेना है। ठीक है, तो आज क्या बाटा जो है सिर्फ शोरूम के रह गया है या उतना ही जो कस्टमर बेस रखा है? अगर आप देखेंगे तो उसके तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, तो कस्टमर क्या है अब तो क्या देखिए एक कस्टमर फोकस जो होता है इसको अच्छी तरह पहले समझ लें, कस्टमर कौन होता है और इससे फायदा कैसा होता है, ये थोड़ा पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं। कस्टमर कौन होता है? अब हम लोग जो है जैसे मैं कहा था, बाटा इज अ सर्विस प्रोवाइडर, वो हमें जो शू सप्लाई करता था। मगर आज मैं अपने बच्चे के लिए कोई शू खरीदने जाऊं, हो सकता है मैं बाटा के शूज ना खरीदूं, बिकॉज जो बाटा के जो प्रोडक्ट है आज मेरी जो है एक्सपेक्टेशंस को जो है फुलफिल नहीं कर रहा।
मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा जो है वो मेमोरी फोम वाला शू पहने, मेमोरी फोम वाला शू पहने, ठीक है, स्केचेस। और जो है कोई चाहता है भाई ये जो है अच्छे अच्छे वैरायटीज मार्केट में आ गए और बाटा के शू में क्यों खरीदूं, वो तो हार्ड है और जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं करता है। अच्छा, इसको समझ लें। तो कस्टमर का जब एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है गिरने लगता है। अब जैसे देखिए, हमारे बचपने में तो स्कूटर्स बस बजाज देखते थे और कोई स्कूटर रोड पे नहीं मिलता था। आज जो है वो म्यूजियम पीस बन गया, वाकई बोलता हूँ। बजाज चेतक, सुपर, ये सब जो है म्यूजियम पीस बन गए। अब देखिए आप एक्टिवा चलता है ज्यादा, अब जहाँ देखो मॉडर्न है ना बाइक्स चलते हैं। तो ये सब क्यों, ये गिरावट क्यों होती है, ये क्यों गिरते हैं? अगर आप ध्यान से देखें, ये जो है जो कस्टमर कौन है ये नहीं समझे और कस्टमर चाहता क्या है ये नहीं समझे। अब देखिए, अब लेटेस्ट जो बाइक्स आते, इसमें जो है जो मोबाइल फोन चार्जर रखता है, इज इट नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर? नो, यस इट इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमर के पल्स को समझते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर को इग्नोर करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गिर जाते हैं। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये स्कूल है। ये स्कूल ये कैसे क्वालिटी ओरिएंटेड स्कूल बन सकती है? तो पहले हमें जो है हमारे कस्टमर्स कौन है ये समझना चाहिए। तो कस्टमर कौन है? हु इज ए कस्टमर? कैन एनीवन रिप्लाई? कस्टमर कौन होते हैं? Can I have some information? Students. Students, right? Alhamdulillah, very good. आओ पहले कस्टमर का डेफिनेशन हम सब समझ लें। Anybody who is taking benefit out of an organization is a customer. ऐसा समझना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी फायदा उठा रहा हो वो उसका कस्टमर है। अब देखिए, किसी ने कहा स्टूडेंट, ये तो प्राइम कस्टमर है हमारा, ठीक है ना? तो प्राइम कस्टमर है। अच्छा, स्टूडेंट जो है खुद अपना डिसीजन लेके हमारे स्कूल में नहीं आता। अब स्टूडेंट को लाके हमारे स्कूल में जो है जोड़ने वाला जो है स्कूल में जो है बच्चे को लाके दाखिला कराने वाले उनके पेरेंट्स होते हैं। बिकॉज वो भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं स्कूल से, ठीक है? और उससे जो है बच्चों की उनको जो है सेफ्टी महसूस होना चाहिए, उनका जो है फ्यूचर में सिक्योर होना चाहिए। इस तरह से उनके भी जो फवाइद आगे रख के वो डिसीजन लेते हैं, तो वो भी हमारे कस्टमर आते हैं। अच्छा, हमारे पास टीचर्स आते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं और वो अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन वहाँ लेते हैं और जो है अपनी तनख्वाहें लेते हैं और उनके बच्चों को खुद वहाँ पढ़ाते हैं। इस तरह से जो है टीचर्स ऑल्सो बिकम कस्टमर्स, ठीक है? इसी तरह मैनेजमेंट जो है इंस्टीट्यूशन चलाती है। कुछ मैनेजमेंट तो अपना फायदा भी उसमें बना लेते हैं, कुछ मैनेजमेंट जो है बहुत जो है सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, मगर उनको सोसाइटी में जो है एक रिकग्निशन मिलता है, ये वो कस्टमर हो जाते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये जो है इनको अगर इंस्टीट्यूशंस ना हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई काम ही नहीं, तो दे डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो इंस्टीट्यूशंस जो है दे एग्जिस्ट एंड द एजुकेशन एग्जिस्ट। अब इससे फायदा क्या हो जाता है? इंस्टीट्यूशंस को जो है गवर्नमेंट एजेंसीज भी कस्टमर बन जाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं क्या यहीं रह जाते हैं? क्या उनका एजुकेशन यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, ये जाते हैं स्कूल से कॉलेजेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है, कोई मैनेजमेंट जाता है। तो दोज इंस्टीट्यूशंस अगेन डिपेंड ऑन हम लोग पर डिपेंड करते हैं। तो क्या वो हमारे कस्टमर नहीं है? जरूर कस्टमर बनते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अब जो है हमारे इंस्टीट्यूशन चलाने में हमारे बहुत लोग मदद करते हैं। जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट सप्लाई करता है, कोई जो है एज ए ड्राइवर हमारे पास काम करता है। अच्छा, और कोई नोटबुक सप्लायर है, कोई यूनिफॉर्म सप्लायर है। ये लोग भले अपना फायदा कमाते हैं मगर हमारी इंस्टीट्यूशन में इसको चलाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कस्टमर में आ जाते हैं। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई हैव क्लियर इट। जी, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब कस्टमर जो है, अब जब तक ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये कह रहा था, जब तक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को खुश नहीं रखते,
या उनकी ज़रूरतों को नहीं समझते और जो है उनकी ज़रूरतों को जब हम अच्छी तरह पूरा नहीं करते तो फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है चलता नहीं, ख़त्म हो जाता है। तो अब हम जितने कस्टमर्स हम गिन रहे थे, अगर इसका अगर देखा जाए एक एक की ज़रूरतें क्या है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है, तो ये अगर देखा जाए और इसको हम अगर रिकॉर्ड किया जाए, अगर ये रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद वो एक एक को हम एड्रेस करना शुरू करें, फिर जा करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये जो है कस्टमर्स की ज़रूरतों को, पल्स को जो है समझने वाला ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, फिर जा करके वो कामयाबी की तरफ जाता है। अब देखिए एक वर्ड आप नोट कर लीजिए, व्हाइट पेपर पैरालिसिस बोलते हैं, व्हाइट पेपर पैरालिसिस। ये मैं रिसेंटली से कहा, आई विजिटेड ए स्कूल, somebody said this white paper paralysis। आप में से कितने लोग इसको जानते हैं, व्हाइट पेपर पैरालिसिस? अब देखिए, कोई भी बच्चे के पास आप एक व्हाइट पेपर दे दें और उससे कहें भाई अपने बारे में 5 जो है सेंटेंसेस लिखें, 5 सेंटेंसेस अबाउट यू, या आपका जो है फ्यूचर प्लान से 5 सेंटेंस में लिखें, या जो आपके जो वेकेशंस हुए इसके बारे में लिखें, वेकेशन में आपने कैसे गुजारा वक्त, आप कह के देखिए। बच्चा जो है एकदम चुपचाप बैठ जाता है। ये जो है मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप इंटरव्यू करेंगे अपने टीचर्स को आप कहिए भाई आप जो है एक सर्कुलर लिखें, बच्चों को जो है आप एक यू आर गोइंग टू टेक द स्टूडेंट्स टू एन एजुकेशनल टूर एंड सीक परमिशन। अपने पेरेंट्स से जो है एक सर्कुलर लिख के उनसे जो है पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। आप कह के देखिए, इंटरव्यू में देखें कितने लोग लिखते हैं, ये ट्राई कीजिए। और जो नहीं लिख पाते, बहुत सारे लोग नहीं लिख पाते, एक सर्कुलर लिखना, ये क्या है, ये क्रिएटिविटी नहीं रहती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं रहती है। तो मैं ये सब क्यों कह रहा था, अब एक बच्चा है, ये व्हाइट पेपर पैरालिसिस माने क्या है, वो कितना भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर ले, अगर वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए फिर वो कामयाब कैसे होता है। देखिए, तो हमें क्या करना है, अब ये बच्चों को जो है, बातें तो हम बहुत करते हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात लंबी चौड़े जो है लेक्चर्स हम दे देते हैं, ठीक, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, राइट, ये सब कहते बहुत हैं, मगर इसके ऊपर क्या हमारे स्कूल्स में एफर्ट्स होते हैं, ये जरूर देखने। तो ये जस्ट मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप इसको डेवलप कर लीजिए, क्योंकि बच्चों के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अब जैसे वालिदैन आते हैं, वो अपने बच्चों को आपके स्कूल में क्यों दाखिल करें, क्या उनका कोई एक्सपेक्टेशन है, क्या बच्चा आपका जो है, उनका बच्चा जो है आपके पास सेफ है, क्या वो जो चाहते हैं वैसे जो है उसके जो है जो सराउंडिंग्स आपने साफ सुथरे रखते हैं, क्या बच्चा जो है टॉयलेट कंफर्टेबली यूज कर सकता है, क्या इतने पाक साफ रखते हैं आप, और जो है क्या उसको खेलने का, फिजिकल डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या उसको जो है एक 360 डिग्री डेवलपमेंट, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट कहते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या फ्यूचरिस्टिक उसको बनाते हैं। तो इस तरह से एक एक्सपेक्टेशन वालिदैन के होते हैं, ठीक है ना। देखिए, कुछ बच्चों को जो है हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वो आके बच्चों बात किया, फिर अच्छा लगा, चलो ठीक है, कॉलेज जो है जस्टिस करेगी हमारे बच्चों को, तो उस बच्चों को जो है वहाँ दाखिला करा दी। Now we get a feedback from them, your children are in discipline side they are weak, because हमारे लैब में कोई भी एंटर करता है उसको बाकायदा एंट्री करना पड़ता है, उस दिन उन्होंने क्या काम किया उसको एंट्री करके, और जो है वापस जाते समय बुक आउट करना पड़ता है, और your students are reluctant to do this. So this information is given by an institution of higher education. एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा बच्चा जो गया, स्टूडेंट गए हैं, वहां से हमें फीडबैक मिलती है, तो वो करेक्टिव एक्शन मैं यहाँ करूंगा, ठीक है ना। इस तरह से कस्टमर फोकस को हम अच्छी तरह समझ लें, कस्टमर कौन है ये समझ लें, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है ये समझ लें, और उसको हम पूरा
सोल्यूशन हम कैसे दें इसके बारे में सोचें, जब जा करके ऑर्गेनाइजेशन जो है एक क्वालिटी ओरिएंटेड बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, बिकॉज अगर इस एक पॉइंट के बारे में बात करना है तो पूरा जो है सेशन बात कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, अब जैसे आपने स्लाइड में देखा होगा, करस्पॉन्डेंट एंड चीफ लर्नर बोल के एक वर्ड लिखा हूं। ठीक है, अब लीडरशिप जो है, ऑर्गेनाइजेशन एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और ये कैसे हो सकता है? टॉप डाउन, जब सबसे जो टॉप में है अगर वो कंटिन्यूस लर्न करें या लर्न करने की हाजत रखता है, फिर जाकर के वो जो क्वालिटी पर्कुलेट होती है, हर इंडिविजुअल के ऊपर उसका असर होता है। प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं, आपके टीचर्स पढ़ते हैं, पेरेंट्स पढ़ते हैं, पेरेंट्स के लिए हमारा तरबिया सेशन होता है। इस तरह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक रोल मॉडल बन करके लीडरशिप होना चाहिए। अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप जो है सिर्फ जो है एसी कमरे में बैठ गए और जो है, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, वी वांट लीडर्स विद डर्टी कफ्स एंड डर्टी कॉलर्स, ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट। हमें एसी में बैठ के सिर्फ जो है लेक्चर झाड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो फील्ड पे काम करें। ठीक है, जिसके कॉलर्स डर्टी हो, जिसके कफ्स डर्टी हो। इस तरह से हम ये ना समझें भाई हम तो करस्पॉन्डेंट हैं, हम तो प्रिंसिपल हैं, हम जो है एक कमरे में बैठे हैं और पूरा स्कूल जो है सही चल रहा है और जो है मैं पूरा एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू विल हैव टू बी ऑन टोस, जाना है। अब ये अगर सिर्फ जो टॉप पर्सन ये समझ के बैठे मैं लीडर हूँ, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि एक हदीस है हर इंसान को जो है एक लीडरशिप रोल है, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊला। ये है, ये हदीस में क्या है। अब देखिए, एक बच्चा है, अगर एक डेस्क में 3 बच्चे बैठते हैं, उसमें एक तो जो है एक्सक्यूज मी, ये जो है जरूर उसमें लीड कर सकता है। इसी तरह एक क्लासरूम का एक मॉनिटर है, ही हैज टू पोसेस द लीडरशिप क्वालिटीज। अब जैसे एक फैमिली है, फादर इज द लीडर, इसी तरह एक बच्चा है और क्लास टीचर है, क्लास टीचर ना लीडर है और क्लास की लीडर है। इसी तरह एक कोऑर्डिनेटर है, वो कुछ टीचर्स के जो है एक्सक्यूज मी आई गॉट इंपॉर्टेंट कॉल। सो लीडरशिप में क्या हो जाता है, हर इंसान को जो है लीडरशिप रोल के लिए तैयार करना। आज सबसे बड़ा वैक्यूम हमारी कम्युनिटी में कुछ है तो लीडरशिप की कमी है। तो लीडरशिप क्या है भाई? अपनी ज़रूरतों को पीछा करके दूसरों की ज़रूरतों को आगे बढ़ाना। ये जो है हम लीडर बनने के बाद नहीं कर सकते, ये जो है हर बच्चे को जो है उसकी छोटी उम्र से ही, स्टूडेंट की उम्र से ही उसको तैयार करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आप देखें लीडर्स का अगर लिस्ट बना लो, अब नबियों का लिस्ट बना लो वो, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स की लिस्ट बना लीजिए, सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर्स या सक्सेसफुल कोई भी लीडरशिप रोल में रहने वालों का अगर नाम लिख लें, अगर उनके क्वालिटीज अगर आप एनुमरेट करते हैं या लिस्ट बनाते हैं, आप देखेंगे लीडर्स में जो है कुछ क्वालिटीज जरूर जो है कॉमन होते हैं। अब इसमें क्या है, अब देखिए हार्ड वर्किंग होते हैं, ये सच्चाई पे वो करते हैं जी, और जो है बहुत फेथफुल होते हैं, और इनका एक बहुत विजन, दूर का विजन होता है, और जो है दूसरों की खैर खा होते हैं, ये अपना सिर्फ सेल्फिशनेस से नहीं चलते। तो इस तरह से जो है, और आप क्वालिटी देखेंगे, ये कुछ क्वालिटीज जो है हर जगह कॉमन मिल जाएंगे। तो ये जो क्वालिटीज अगर हमारे लीडर्स में हैं, ये जो है इसका हम जब रोल मॉडल बनते हैं तो हमारे बच्चे वैसे बनेंगे, हमारे टीचर्स ऐसे बनेंगे, हमारे जो प्रिंसिपल हैं ऐसे, तो तमाम जो है वो स्कूल पे जो है इसके असर पड़ते हैं। तो लीडरशिप रोल को आप समझ लें। तो क्वालिटी ओरिएंटेड जो है सिर्फ एक बेहतरीन प्रिंसिपल डालने से जो है पूरा स्कूल क्वालिटी नहीं बन जाता है। तो he or she has to be a practicing Muslim or a practicing individual, who is having principles. तो उस तरह उसका जो है उसके जो इम्पैक्ट जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। इसी तरह एंगेजमेंट ऑफ पीपल, हमें मैम बोल रहे थे मुझे जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो वी हैव अ प्रोग्राम जो
अब विजन स्टेटमेंट, हमारे स्कूल का विजन स्टेटमेंट है, ये जो है हम हर एक इंसान याद करके रखा है और मॉर्निंग असेंबली में पढ़ते हैं और जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जो है हम जो है स्कूल के ड्राइवर को बुला लेते हैं, बोलते ठीक है आप बोलो विजन आज, ठीक है। कभी आया को बुला लेते हैं, ठीक, सफाई करने वाले, उनको बोलते हैं आप बोले, और उनको पूछते हैं भाई ये तो विजन है, ओके, वी स्ट्राइव टू एनरिच आवर स्टूडेंट्स विद क्वालिटी एजुकेशन, skills and good character, making them caring and committed towards their parents and also as contributing members of the society. जब ये कहता है तो बोलते हैं where you fit in, आप इसमें कहाँ आते हैं, आपका रोल क्या है। तो हम उनको समझाते हैं देखो आप जब तक आपके पूरे प्रेमिसेस को साफ नहीं रख सकते, बच्चा तंदुरुस्त नहीं रह सकता, उसको जो है दिल लगेगा नहीं पढ़ने में, तो आप जो है यहाँ फिट होते हैं। ड्राइवर है, आप जो बच्चे को जब तक वक्त पे नहीं लाते, वो जो है सही टाइम पे नहीं आएगा, एहसास कमतरी उसमें नहीं पैदा होती है और जो है वो अच्छी तरह पढ़ता है। टाइम पे आना जाना ये आपके जिम्मे है, इसलिए आप जो है इस तरह से हम विजन स्टेट में हमारी फिट है, इस तरह से जो है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। अगर मान लो देखिए एक इंस्टीट्यूशन का जो क्वालिटी ओरिएंटेड होना जो है, मैं जैसे पहले कह रहा था सिर्फ प्रिंसिपल या अच्छे मैथ्स टीचर आ दिए, अच्छे कॉमर्स के टीचर आए, इससे नहीं होता। इवन जो सफाई वाले जो होते हैं इनमें भी क्वालिटी ओरिएंटेशन होना चाहिए, इनमें भी। और जो है क्लर्क्स हैं या PROs हैं, तो जब तक इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल नहीं होता है पूरा, वो जो है कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। अब अगर फुटबॉल मैच चल रही है, 11 प्लेयर्स होते हैं उसमें, अगर वो गोलकीपर ये कह दे भाई आज मैं नहीं खेलूंगा, आप सारे 10 प्लेयर आप खेलेंगे, और जो है क्या वो मैच जीत सकते हैं? कभी नहीं हो सकता, बिकॉज हर इंसान का एक रोल होता है। गोलकीपर का एक रोल होता है, फॉरवर्ड का एक रोल होता है, राइट बैक है, लेफ्ट बैक है, सेंटर बैक है, इनका एक रोल होता है। जब तक हर इंसान अपना अपना रोल सही नहीं खेलता, सही नहीं प्ले करता, फिर जा करके वो टीम कामयाबी पे नहीं जा सकती। इसी तरह हम जो है किसी को छोटा ना समझे, भाई ये तो वॉचमैन है, ये तो हमारा गार्ड है, ये तो हमारा सफाई वाला है, ये तो हमारी आया है, ऐसा किसी को वो नीचा ना समझे। हर इंसान को जो है उनको जो है एनकरेज करके जब तक हम नहीं लेके चलते, जब तक हम उसको जो है एक टीम में एक मेंबर नहीं समझते, जब तक उसको मोटिवेट करके नहीं रखते, जब तक वो अपने दिल से जो है एंगेज नहीं होता, फिर वो क्वालिटी ओरिएंटेशन नहीं आता इंस्टीट्यूशन। इसी तरह प्रोसेस अप्रोच, कोई भी काम करें पर्सन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। एक शख्स के ऊपर शख्सियत पे नहीं चलना चाहिए, भाई प्रिंसिपल हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, टेरर हैं, अब वो रहेंगे तो काम ऐसा चलता है, अगर वो छुट्टी ले ले तो खत्म, इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मान लो भाई ऑफिस में वो पर्टिकुलर क्लर्क ही अच्छा काम करता है, अगर वो छुट्टी ले लिया खत्म, उस दिन जो पूरा चौपट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोसेस अप्रोच क्या है? पहली बात तो प्रोसेस को समझ लें, ये एक दूसरे के जो है इंटर रिलेटेड एक टास्क है। आउटपुट इनपुट एक है, आउटपुट एक है, और इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, और एक के बाद ही दूसरा हो सकता है। इस तरह से इंटर रिलेटेड स्टेप्स हैं। अगर इनको हम जो है सलीके से करें, फिर जा करके एक इनपुट जो है आउटपुट में कन्वर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा आया एडमिशन के लिए, तो पेरेंट्स आ गए, वो कहाँ से शुरू होगा, वो किसको पहले रिपोर्ट करेगा, और वहाँ से उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो वहाँ के बाद वो कहाँ जाएगा, और उसके बाद एक एंट्रेंस टेस्ट होगा तो किसको मिलेगा, और वो एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट लेके किससे मिलेगा, उसके बाद जो है प्रिंसिपल से कब इंटरव्यू होगा, उसके बाद जब प्रिंसिपल के अप्रूवल के बाद वो कहाँ लेके जाएंगे और कहाँ फीस पे करेंगे, कहाँ जो कौन उसको कंफर्मेशन करेगा जॉब का। ये एक प्रोसेस है। जब तक ये प्रोसेस हम डिफाइन नहीं करते, वो जो है फिर खियास बनते रहेगा। कोई भी आए, कोई अपना मर्जी से काम करे, और जो है कुछ काम छूट जाता है, कोई अधूरा रह जाता है, फिर जाकर के क्वालिटी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता। तो ये सिर्फ मैं एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहा था। इस तरह से हर ऑपरेशन, एक्सक्यूज मी, अजान खत्म होने दीजिए फिर बात करें, जब तक आप जो है क्वेश्चन चैट में लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू दिस सेशन, राइट। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट, तो हम लोग ये देख रहे थे प्रोसेस अप्रोच क्या होता है। प्रोसेस हर प्रोसेस, जैसे एडमिशन हो गया, आपके एग्जामिनेशन हो गया, करिकुलम प्लानिंग हो गया जी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के, ये सब जो है हम प्रोसेस बना के रखते हैं। तो कोई शख्स हो या ना हो,
अगर प्रोसेस डिफाइंड है उसको तो कोई भी कर सकता है। अगर प्रोसेस डिफाइंड नहीं है, कोई इंडिविजुअल पे, कोई एक शख्स के ऊपर अगर कोई चीज़ें हैं, तो वो जब वो शख्स नहीं रहेगा तो आपका प्रोसेस नहीं चलेगा। तो क्वालिटी ओरिएंटेड में क्या होता है, प्रोसेस अप्रोच को जो है उस पर ध्यान करना, हर चीज़ को जो है प्रोसेस बना दीजिए, और प्रोसेस का जो है एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बना के रखिए। भाई रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, आपके पास जो है पहले तो असेसमेंट होना चाहिए, क्या कैसे कितने टीचर्स की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसका असेसमेंट हो, और जो है एडवर्टीजमेंट कैसा होना चाहिए। उसके बाद जब टीचर मान लो अप्लाई करें तो उसको कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है उसको इंटरव्यू बुलाते हैं, कब बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, और उसके बाद जो है बुलाने के बाद जो है एक प्रोसेस होता है, क्या करना, क्वेश्चनर भरना है, क्वेश्चनर में के बाद उसके बाद क्या होगा, माइक्रो टीचिंग के लिए जाना है, लेसन प्लान चेक करना है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोसेस बना के फाइनली जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर तक जब पहुंचा देते हैं तो एक कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। इसी तरह इम्प्रूवमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक जैसे PDCA साइकिल बोलते हैं, PDCA प्लान डू चेक एंड एक्ट, प्लान डू चेक एंड एक्ट, PDCA। कोई भी प्रोसेस आपका है, ज़रूरी नहीं सिर्फ अल्लाह की जो क्रिएशंस हैं ये परफेक्ट है। अब इंसान की जितने भी हैं ये तो ज़ईफ है, कोई भी हम काम करें उसमें खामियां तो आना ही है। अब वो खामियों को जो है रहने नहीं देना, वो खामियों को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए कोई ना कोई जो है चेंजेस लाते रहना। यू प्लान समथिंग, प्लान किया और उसको आप उस अमल में लाते हैं, अमल में लाने के बाद देखते हैं वो सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई बेहतर प्रोसेस हो सकता है, ये सोचते हैं। अगर उसमें कुछ फेलियर आ गया, वो फेलियर को दूर करने के लिए क्या क्या सबब है देखिए, आपने फिर नई चीज़ें जो है उसको प्रोसेस को थोड़ा ठीक कर दिए, प्लान डू चेक, उसके बाद फिर नया से दूसरे तरीके से एक्ट करना शुरू कर दिया, उसके रिजल्ट्स आपने मेजर किया। सो PDA साइकिल, सो इम्प्रूवमेंट जो है रहते रहना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट बोल के था, अब इम्प्रूवमेंट कर दिया इसको, ठीक है। इसी तरह कोई भी डिसीजन हो, ये जो है एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। आप जैसे टीचर्स का इंक्रीमेंट देना है, आपने इंक्रीमेंट दिया, आप किसी को जो है 2000 रुपीज़ दे दी, किसी को 3000 दे दी, और जो है आपस में टीचर्स जो है देखो उनको तो उनके जान पहचान के हैं, और बहुत सारे ऐसे गॉसिपिंग होते हैं, बना दिए। अगर आपने एक फॉर्म डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, आप उसमें फॉर्म में जो है पूरे डिटेल्स खुला ट्रांसपेरेंटली लिख दिया, ठीक हो, आप जो है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने साल से काम कर रहे हो, अब जो है क्या क्या प्रोग्राम आप जो है बच्चों की बेहतरी के लिए किया, कुछ बच्चों का नाम उसमें दिए, इंसिडेंट्स बताएं जी, पेरेंट्स के कंप्लेन कितने आए आपकी क्लास से, और जो है आपने कैसे कैसे सोल्यूशन, इस तरह से जो है हम बहुत सारे क्राइटेरिया, मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म, तो वक्त मिला तो आप जितने क्राइटेरिया दे दिया उनसे भरा के कंप्लीट करा के ले लिया आपने, दिया उन्होंने, उसके बाद जो है उनके कोऑर्डिनेटर चेक करते हैं कि कोऑपरेट कैसे करते हैं उनके साथ, ये पता चल जाता है। वहाँ से जो प्रिंसिपल के पास आता है, क्या उनके पास पूरे रिकॉर्ड्स सही टाइम पे पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, क्या ऊपर जो लिखे हुए चीज़ें सही है या नहीं। जब ये पूरा हमारे पास आ जाता है, फिर आप किसी को 10,000 इंक्रीमेंट दो, 1000 रुपीज़ दो, कोई भी नहीं पूछ सकता, आप बता सकते देखिए एविडेंस बेस्ड है, ये है, आपने ये खूबियाँ हैं इसलिए आपको 10,000 मिला, आपने ये खूबियाँ नहीं हैं इसलिए कम। तो कोई भी जो है एविडेंस बेस्ड जो है काम करते हैं, फिर जा करके हमें बेफजूल परेशानियों से हम बच सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए कोई बच्चे को जो है एक पेरेंट बोलते भाई जो है चित्रा पढ़ना बहुत कम नंबर लाता है, ऐसे बोल के डांटते रहते हैं, तो बच्चा जो है बहुत परेशान, तो जाके फिर पुराने जो अपने रिकॉर्ड्स पेपर्स वगैरह पड़े रहते हैं, एक दिन उससे ऐसे देख रहा था तो पता चला अब्बू का जो है वहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल गया, पता चला वो भी जो है बहुत सारे पेपर, बच्चा चुपचाप रख लिया। अब नेक्स्ट जो है बच्चे का जब प्रोग्रेस रिपोर्ट आया, अब्बू बुला के डांटने लगे, भाई क्यों, क्या इतने कम मार्क लिया, तो अब्बू जो है बच्चा बहुत परेशान खामोश खड़ा रहा, तो पूछे भाई क्यों खामोश खड़ा, तो उन्होंने उनका अब्बू का प्रोग्रेस रिपोर्ट आगे दिया, आपने भी तो फेल किए, देखिए आपके नंबर्स। अब जो है एविडेंस है बच्चे के हाथ में, वो चुपचाप रहे। तो इस तरह से जो है कोई भी काम हम करें, ये नहीं बच्चों को जो है ये सिखाना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एविडेंस जब होता है तो सामने वाला जो है ऐसे बेफजूल बात नहीं करता, ठीक है ना। तो इसी तरह कोई भी हम काम करें, जैसा पेरेंट्स के कंप्लेन आते हैं हमारे पास, हम क्या करते हैं, छोटी सी छोटी कंप्लेन भी हो
इसको जो है हम रजिस्टर कर लेते हैं, एक फॉर्म में सिग्नेचर ले लेते हैं और उसका जो है विदिन 24 आवर्स उसका सोल्यूशन जो है देते हैं, या अगर उसमें डिले होता है तो हम ये इसको 24 आवर्स के अंदर इन्फॉर्म करते हैं, हाँ योर पॉइंट इज नोटेड एंड ये काम जो है हम ऐसा पूरा करेंगे, इसमें ये रुकावटें हैं ये पूरा करेंगे, या ये सोल्यूशन है आपका, ये 24 आवर्स के अंदर। अब कोई पेरेंट आके हमारे पास बोले हम तो बस कंप्लेंट देते हैं, आप तो जो है कभी उसका अटेंड ही नहीं करते, तो हम जो है एविडेंस उठा के बताते हैं, देखिए 144 कंप्लेंट्स आए, इसमें देखिए 60 जो है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है, इसको जो है हम ऐसे ऐसे सॉल्व किए, ये देखिए एजुकेशन एकेडमिक्स रिलेटेड इतने कंप्लेंट्स आए हैं, देखिए कैंटीन के बारे में 6 कंप्लेंट आए। तो इस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स के साथ जब बात करते हैं, फिर जा करके पेरेंट्स जो है ऐसे ही नहीं बात करते हो, जब आपके पास पूरा डाटा है और जो है आप और हक पे हैं तो कोई नहीं बात कर सकता। इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे वेंडर्स का पेमेंट है, ये सब जब सही आप जब एग्रीड अपॉन टर्म्स के ऊपर करते हैं और एविडेंस के साथ बात करते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती। तो क्वालिटी ओरिएंटेशन का जो लास्ट पॉइंट हम जब देखेंगे, बिकॉज वक्त बहुत कम है, माफ कीजिएगा वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। जैसे मैं जितना अब कस्टमर के बारे में बोल रहा था, जितने कस्टमर्स हैं इन सब का जो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो है कोई आता है आपके स्कूल में खड़े होकर ऐसे वीडियो लेने लग जाता बच्चों का, तो आप मना कर दें, क्यों ले रहे हैं आप, वीडियो नहीं लेना चाहिए आपको, तो बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो अगर आप एक बोर्ड लिख दिए, आप डाल दिए, डिस्प्ले में डाल दिए वीडियोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, तो फिर जाकर के आप बोल सकते हैं देखिए देयर इज अ बोर्ड, व्हाई आर यू टेकिंग अ वीडियो ऑफ स्टूडेंट्स, नो, आपके बच्चे का लेना ही मना है, आप दूसरे बच्चों का कैसे ले सकते हैं। अब जो रिलेशनशिप जो है आप वहां आर्ग्यूमेंट नहीं जाता, you can very well say that, see, this is a rule of our organization, we have certain ethical values, you're not supposed to take photograph or videograph of this premises because इसमें जो है गलत फहमियां हो सकते हैं। इसी तरह वेंडर्स के लिए आप जब प्रॉमिस किए हैं आप जो पेमेंट कर दीजिए, और जो है देखिए आपको जो है एक वेंडर बेहतरीन प्रोडक्ट देगा और कंटिन्यूसली देता रहेगा। इसी तरह पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, टीचर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं जी, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन साथ, तो इस तरह से रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो हम जो है सरसरी तौर पे आज जो है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देख चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने में ही इतना थोड़ा वक्त चला गया, अब फर्दर जो है मैं अब ये है CBSE का एक असेसमेंट एंड एश्योरेंस का, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस। अगर इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट ले लेते हैं, इसमें देखिए अगर कोई स्कूल को असेस करती है CBSE, तो पहले जो है स्कोलास्टिक प्रोसेसेस, क्या है बच्चे का एकेडमिक्स कैसा है, उसके परफॉर्मेंस कैसे हैं, स्कूल के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, इसका वेटेज जो है सिर्फ 25% है, सिर्फ 25%, 100%। कोई स्कूल तो ये समझ के बैठती है 100% रिजल्ट आ गया तो वो 100% कामयाब इदारा है, ऐसा नहीं है। तो CBSE का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सिर्फ 25% वेटेज है स्कोलास्टिक प्रोसेसेस के लिए, और उस जो है 21st सेंचुरी स्किल्स जो डेवलप करने के लिए को स्कोलास्टिक प्रोसेसेस है, इसका वेटेज है 15%। इंफ्रास्ट्रक्चर 10% पे, अगर कोई ये समझे बहुत पॉश हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, क्लासरूम्स ऐसे हैं, फर्नीचर ऐसा है, जो हमारा वॉशरूम्स ऐसे हैं, ये सब कीजिए, मना नहीं है। अगर आपके पास मामूली चीज़ है मगर उसको साफ सुथरा रख रहे हैं, अच्छी तरह मेंटेन कर ले रहे हैं, तो उसका वेटेज है सिर्फ 10% है। सो यू नीड नॉट टू वरी मेरे पास जो है पॉश कैंपस नहीं है, नॉट नेसेसरी। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेस, आपके टीचर्स हैं, क्या उनके ऊपर जो है ट्रेनिंग प्रोसेसेस कंटिन्यूस चलते हैं या नहीं जी, और जो है क्या उनको एक एक करियर पाथ आपने दे रखा है। इस तरह से जो है नॉट ओनली टीचर्स, एनी ह्यूमन रिसोर्स विच इज इन यूज, whoever is employed, क्या इनके ऊपर आपकी मेहनत होती है या नहीं, इसके 10% है। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, जैसे कोई फिजिकली चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, क्या उसके साथ आपका जो रवैया कैसा है, क्या उसको इंक्लूड करते हैं, इसके लिए 10% है। इसी तरह मैनेजमेंट गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कैसा है, और जो है एफिलिएशन की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इसका 10% है। लीडरशिप, अगेन अब लीडरशिप में जो है जितनी चीज़ें पहले गिनाया था, ये बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन, हम जो है सेटिस्फेक्शन सर्वे लेते हैं पेरेंट्स का, चलो ठीक है, हाउ सेटिस्फाइड यू आर, उसका ग्रेडिंग दे दिए। अब कौन सी चीज़ों में कितने सेटिस्फाइड, ट्रांसपोर्टेशन से आप कितना सेटिस्फाइड, स्कूल की कैंटीन से कितना, अगर किताबें देते हैं उससे आप कितने खुश हैं,
बच्चों की स्कूल जो है क्लासरूम ट्रांजैक्शन से, तो इसका 10%। इस तरह से अगर आप इसको कंपेयर करें, ये जो है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, अगर इसको आप स्टडी करें, ये ऑलमोस्ट वही चीज़ों को जो है दूसरे नॉमेनक्लेचर से जो है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इफ़ यू गो टू NABET का जो एक्रीडिटेशन, स्कूल एक्रीडिटेशन मॉडल है, उसमें भी यही स्कूल गवर्नेंस के ऊपर पेज है, एकेडमिक प्रोसेस के लिए है। इस तरह से जो है आप ये अगर कोर समझ लिया, आपने कोर समझ लिया और इसके ऊपर अगर आप मेहनत करना शुरू कर दिए, इंशाअल्लाह ये क्वालिटी आपके स्कूल के आगे आना ही है। और जो है बहुत ज़रूरी है, हमारी कम्युनिटी बहुत गिर चुकी है और इसको सही करना जो है हमारे ऊपर जिम्मा है, ये फ़र्ज़ आइन है हमारे ऊपर। और क्वालिटी मैनेजमेंट हमें जो है बेहतर करना है, ताकि अब देखिए और एक बात अच्छी तरह समझ लें, बच्चों को जो है पढ़ा लिखा करना ही ज़रूरी नहीं है, ये अल्लाह के अच्छे बंदे बने, ये बहुत ज़रूरी है, इनका कैरेक्टर अच्छा हो, ये जो है खुदा से डरने वाले बने और दूसरों को हमारे से फ़ायदा हो, सिर्फ मुस्लिम को नहीं, आम इंसान को जो है फ़ायदा पहुँचाने वाले बने, सोसाइटी में जो है कंट्रीब्यूट करने वाले बने। तो इस तरह से जब प्रोग्राम जब बनता है, कोई बाहर से आके आपको असेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये खुद जो है हम खुदा से डर के करेंगे, फिर जा कर के फ़ायदा होता है। और जो है इंशाअल्लाह मौका मिलेगा असेसमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए वक्त हो गया, माफ़ी चाहता हूँ मैं इतना ही कवर कर पाया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी मैडम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर सर। सलीम भाई, So we have finished our program. We are very thankful to Azam sir, very busy person. Listening? My voice is coming? My voice coming? Yes, sir. yes, sir. So Azam sir, though he is a correspondent, but he looks after many schools, their upgradation, their quality improvement and all. He gives advices and he gives the ideas how to develop these schools. So he is a very busy person. Instead of his busy schedule, he has accepted. He is a fluent speaker in English as well as in Tamil. And today we have seen him speaking in Urdu so fluently. ऐसा लगता था जैसे कि ये उर्दू जबान ही के मुखर्रिर हैं, मगर जब वो अंग्रेजी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई अंग्रेज बोल रहा है। और जब वो तमिल में बातें रखते हैं तो तमिलियंस रखते हैं। तो मतलब ये है कि ये मल्टी फेसेड पर्सनालिटी हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना वक्त हमारे लिए दिया। इनकी उर्दू तकरीर हमने पहली मर्तबा सुनी है और यकीनन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और हम निगार मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हीं की कोशिशों से ये आके यहाँ पर इस स्टेज पर आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें ज़्यादा लोग इसमें शरीक होंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही क्वालिटी की बातें जो हमारे डे टू डे स्कूल अफेयर्स के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं वो आएंगी और यकीनन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। जस्ट ये इट इज़ ए प्रोग्राम की तरह नहीं रहेगा ये, बल्कि अगर हम इसे अच्छी तरह से सुने और अपने क्लासेस में और हमारे स्कूल्स में इसको अपनाएं तो यकीनन हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी। तो ये एमपी का भी हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अपने इस नेटवर्क के ज़रिए से स्कूल्स के और फिर इंस्टीट्यूशंस की वो खिदमत कर रहे हैं। तो इससे हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।